Hello students, this is Archana Chauhan. Welcome to my channel Archana Chauhan GMT. Today we will discuss exercise 7.2 of chapter 7. Chapter name is cubes and cube roots. Okay, so let's start. Question number 1. Find the cube root of each of the following numbers by prime factorization. किसके थ्रू हमें फाइंड करना है क्यूब रूट? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. ठीक है, क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू. सो क्वेश्चन 1 64. सो लेट्स डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64. सो स्टार्ट. 2 3 जा 6, 2 जा 4 and 2 1 जा 2, 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4. Now 64 we can write cube root like this. So you will write here cube root and 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 times है. So now we need to make groups of 3 digits. 3 digits के हम groups बनाएंगे. Okay, so 3 groups and ये 3 groups. Okay, यहां से हमें मिलेगा 1 time 2 and यहां से भी हमें मिलेगा 1 time 2. So cube root of 64 will be 4. Got it? Now come to question number 2. It is 512. So again we will do prime factorization of 512. Let's start. 512. So it will be 2 2 ja 4, 2 5 ja 10, 2 6 ja 12, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 8 ja 16, 2 6 ja 12, 2 4 ja 8, 2 3 ja 6, 2 2 ja 4 and 2 1 ja 2, 2 6 ja 12, 2 8 ja 16, 2 4 ja 8 and 2 2 ja 4. These are prime factorization of 512. Now write them. लिख लेते हैं इनको. क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ 512 इक्विवेलेंट टू क्यूब रूट. हाउ मेनी टाइम्स 2 इज रिपीटेड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2. इन सभी को आप लिख लीजिए क्यूब रूट के अंदर में. नाउ मेक ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स अगेन. सो 3 डिजिट्स एक साथ फिर से आपने लेना है. ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा क्यूब रूट ऑफ 512. ये हमें 1 टाइम 2 बाहर देगा एंड इट इज ऑल्सो 1 टाइम 2 एंड यहां से भी हमें 1 टाइम 2 मिल जाएगा. नाउ क्यूब रूट ऑफ 512 विल बी 2 2 जा 4 2 जा 8. सो 512 किसका क्यूब रूट हुआ? सॉरी 512 का क्यूब रूट क्या हुआ? 8 हुआ. ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर पार्ट 3. Now students check for question number 1 part 3. It is 10648. So again do the prime factorization of 10648. So 2 5 are 10, 3 are 6, 2 are 4, 4 are 8, 2 are 4, 6 are 12, 6 are 12, 2 are 4 and 1 3 3 1 and ये तो 11 से ही जाएगा. 11 1 are 11 and 2 11 2 are 22 and again 11 1 are 11. So 11 1 are 11 and 11 1 are 11. Okay, from here we got 10648 and these are the prime factors of 10648. 2 multiply by 2 multiply by 2, 11 multiply by 11 multiply by 11. Now make group of 3 digits. ठीक है, तो यहां से हमें क्यूब रूट मिलेगा 10648 इक्वल्स टू ये 1 टाइम 2 मल्टीप्लाई बाय 11, क्योंकि यहां से जो 3 डिजिट्स है हमें 1 टाइम 11 देंगे. सो क्यूब रूट ऑफ 10648 वी विल गेट 22. ठीक है, नाउ कम टू 27,000. ठीक है, सो जस्ट डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. 2700. From here we will get 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 5s are 10 and 2 6 are 12, 7 are 14, 5s are 10, 2
2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 and 2 5 जा 10. Now 3 3 plus 3 5 से ही ये जाएगा, ठीक है. चेक कर लेते हैं. 7 5 7 plus 5 12, 12 plus 3 15 plus 3 18. 3 से भी चले जाएगा. So 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15. Now 3 3 जा 9 and 3 7 जा 21 and 3 5 जा 15. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 5 जा 15. Now 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 and 5 5 जा 25. So these are the prime factors of 2 7 0 0. Now write them. लिख लेते हैं इनको, ठीक है. So it will be cube root of 2 7 0 0 equals to, ठीक है. कितने टाइम्स 2 है? 3 टाइम्स. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 3 टाइम्स ही क्या है? 3 है एंड 3 टाइम्स ही हमारे पास 5 है. ओके. नाउ क्या हो जाएगा? 3 3 के ग्रुप्स हम बनाएंगे इस तरीके से. यहां से हमें मिलेगा 2, यहां से मिलेगा 3, यहां से मिलेगा 5 एंड ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 227,000. 2 3 जा 6 5 जा 30, ठीक है. ये किसका क्यूब रूट हो गया? 30 का, ठीक है. नाउ लेट्स चेक फॉर पार्ट 5th. Now check for part 5th. It is 1 5 6 2 5. Let's do prime factors. 1 5 6 2 5. So it is 5 3 is 15, 5 1 is 5, 5 2 is 10 and 5 5 is 25. 5 6 is 30, 5 2 is 10 and 5 5 is 25. 5 1 is 5, 5 2 is 10 and 5 5 is 25. Again 5 2 is 10 and 5 5 is 25 and 5 5 is 25. So these are the prime factors of this. Now write in cube root 1 5 6 2 5. So we can write all these. एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं, थोड़ा प्लेस कम है यहाँ. So it will be cube root. How many times we have 5? 6 times. So 5 multiplied by 5 and 5 multiplied by 5 multiplied by 5. Now make group of 3 digits, ठीक है. So from here we will get 1 time 5 and from here also we will get 1 time 5. So cube root of 3 1 5 6 2 5 equals to 25, ठीक है. Now come to part 6. It is 13,824. So first do the prime factors. पहले हमें prime factors करने होंगे, ठीक है. So 2 6 is 12 and 2 9 is 18, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 4 is 8, 5 is 10, 6 is 12, 2 1 is 2, 7 is 14, 2 is 4, 8 is 16, 2 8 is 16, 6 is 12, 4 is 8, 2 4 is 8, 3 is 6, 2 is 4, 2 2 is 4, 1 and 6, 2 1 is 2 and 8 is 16, 2 5 is 10, 4 is 8, 2 2 is 4, 7 is 14, 3 9 is 27 and 3 3 is 9. These are the prime factors of this. Okay. Now write them. So we can write cube root of 1 3 8 2 4. क्या हो जाएगा? Cube root of 2 multiply by 2 multiply by 2. I don't think so कि इसमें आएगा, ठीक है. थोड़ा सा नीचे ही ये लिखना पड़ेगा. Okay. So write from here 3. How many times 2? We can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 times 2 and 3 times 3. So 2 multiply by 2, 2, 3 times more and 3 times 3. ठीक है. Now make the pair of 3 digits. So 2, इस तरीके से ये ग्रुपिंग हो जाएगी इनकी एंड यहां से हमें मिलेगा
क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 to 4 इक्वल्स टू, देखो यहां से क्या मिला 2, यहां से फिर से 2, यहां से भी क्या मिला 2 और यहां से 3। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4 इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ 1 3 8 2 4 क्या हो जाएगा 24। ओके, नाउ लेट्स चेक फॉर पार्ट 7। Now students, check for part 7 of question 1. It is 110592. So just do the prime factorization first. It is divided by 2 5s are 10 and 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 9s are 18 and 2 6s are 12. 2 2s are 4 and 2 7s are 14, 2 6s are 12 and 2 4s are 8 and 2 8s are 16. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 8s are 16 and 2 2s are 4 and 4s are 8. 2 6s are 12, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 3s are 6, 4s are 8, 5 10, 6 are 12. 2 1s are 2, 7s are 14, 2s are 4 and 8s are 16. 2 8s are 16, 6 are 12, 4s are 8. 2 4s are 8, 3s are 6, 2 2s are 4. 2 2s are 4, 1 time चले जाएगा and 6 times and 2 1 8 times and 5 4 and 2 2 are 4, 7 are 14, 3 9 are 27 and 3 3 are 9. ठीक है, so these are the factors of 11059. Now write in cube root. So cube root of 110592 will be, कुछ इस तरीके से हम इनको राइट कर लेंगे, काउंट कर लेते हैं कि कितने टाइम्स इसमें 3 आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 टाइम 2 है और 3 टाइम्स 3 है। जस्ट राइट देम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये कुछ ऐसे करके बनेगा 3 3 6 3 9 एंड कुछ ये, और यहाँ प्लेस नहीं बन रहा है इसलिए मैं यहाँ बाकी के यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, जस्ट मेक द पेयर्स ऑफ 3। ये बन गया एक, ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ एंड लास्ट वन दिस। सो क्यूब रूट ऑफ 3110592 will be 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. So it will be cube root of 110592. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। ठीक है, तो ये किसका क्यूब रूट हुआ 48 का, सॉरी 48 इसका क्यूब रूट हुआ। स्टूडेंट्स चेक फॉर पार्ट 8। इट इज 46656। सो जस्ट डू द प्राइम फैक्टर्स फर्स्ट। 46656। ठीक है, सो इट विल बी 2 2 जा 4, 3 जा 6, 3 जा 6, 2 2 जा 4, 8 जा 16, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 6s are 12, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 8s are 16, 3s are 6, 2s are 4 and 2 2s are 4, 9s are 18, 2 1s are 2 and 6s are 12, 2 1s are 2, 2 4s are 8 and 2 5s are 10, 2 8s are 16, 2 7s are 14, 2 2s are 4 and 9s are 18. Now with 3 2s are 6 and 3 4s are 12, 3 3s are 9, 3 8s are 24, 1 टाइम चले जाएगा, 3 2s are 6 7 and 3 9s are 27 and 3 3s are 9। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। राइट ऑल द प्राइम फैक्टर्स टुगेदर। सो इट विल बी 3 4 6 6 5 6। ठीक है, सो यहाँ पर इनको लिख लीजिए। कितने टाइम्स 2 है 6 टाइम्स। So 2 multiply by 2 multiply by 2, 2 multiply by 2, ठीक है, and 6 times ये हमारे पास 3 है। So 3 multiply by 3 multiply by 3, 3 multiply by 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 की ग्रुपिंग हम फिर से कर लेंगे। ओके, सो यहाँ से हमें मिलेगा क्यूब रूट 46656 इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मिलेगा 1 टाइम 2, यहाँ से भी 1 टाइम 2, यहाँ से 1 टाइम 3 and यहाँ से 1 टाइम 3. So it will be cube of 46656 equals to 2 2 4 3 12 3 36. So
cube root of 46656 will be 36. Now students, check for part 9th of question 1. It is 175616. So we need to factorize it first. 175616. So do the prime factors. So 2 8 is 16, 7 is 14, 8 is 16 and 1 में नहीं जाएगा इसलिए 8 is 16. Okay. Now 2 4 is 8, 2 3 is 6, 9 is 18, 0 4 times 8, 2 2 is 4, 1 and 9 times 18, 5 is 10, 2 is 4, 2 1 is 2 and 1 में नहीं जाएगा इसलिए हम 0 पुट करेंगे. 2 9 is 18 and 2 7 is 14 and 2 6 is 12, 2 5 is 10, 4 is 8, 8 is 16 and 8 is 16, 2 2 is 4, 7 times 14, 4 times 8, 4 times 8, 2 1 is 2, 3 times 6, 7 times 14 and 2 times 4 and 2 6 is 12 and 2 8 is 16, 2 6 is 12, 2 3 is 6, 4 times 8 and 2 3 is 6. अब ये 2 से नहीं जाएगा. Okay, so we will divide by 7. 7 4 is 28. ठीक है. 28 में जब आप माइनस करोगे 6 रिमेनिंग रहेगा एंड 7 9 is 63 and 7 7 is 49. So these are the prime factors of this. Now write down cube root of 175616 equivalent to कितने टाइम्स 2 है काउंट कर लेते हैं 3 and 3. 9 times 2 है so we can write 2 multiplied by 2. ठीक है. और कितने टाइम्स हमारे पास 7 है 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7. नाउ मेक द ग्रुप्स ऑफ 3 के ग्रुप्स बना दीजिए और वो 1 टाइम बाहर आ जाएंगे. तो 175616 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7. सो क्यूब रूट ऑफ 175616 विल बी 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 7 जा 56. ठीक है. तो इसका आंसर होएगा वो 56 होएगा. ओके. नाउ लेट्स चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Now student check for question part 10 of question 1. It is 91125. So again we will do prime factors of 91125. ठीक है. So it will go with 3. So 3 3 is 9. 1 में नहीं जाएगा that's why we will write here 0 and 3 3 is 9 and 3 7 is 21 and 3 5 is 15. 3 1 is 3 0, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 5 is 15. 3 3 is 9 and again 3 3 is 9 and it will remain here 3 7 is 21 and 5 is 15. 3 1 is 3, 3 1 is 3, 3 2 6, 3 2 is 6 and 3 5 is 15 and 1 time more 3 3 is 9 and 3 7 is 21 and 3 5 is 15 and 1 time more 3 1 is 3, 3 2 is 6, 5 is 15. Now it will go with 5, 5 2 is 10, 5 is 25 and 5 5 is 25. So these are the prime factors of this. Now we can write cube root of 91125 equivalent to क्या हो जाएगा. How many times? 3. We have 6 times. So 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and 3 times we will write here 5. Okay. Make the groups of 3 digits. 3 digits के आप पेयरिंग करेंगे यहाँ पर तो we will get 91125 equals to ये देगा 1 time 3. यहाँ से हमें 1 time 3 और यहाँ से हमें 1 time 5. So it will be 3 3 is 9, 5 is 45. So it is the cube root of 91125. ठीक है. So 45 क्या होगा इसका क्यूब रूट होगा. नाउ लेट्स चेक फॉर क्वेश्चन 2. Now students check for question number 2 of exercise 7.2. State true और false. आपको बताना है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये ट्रू है या false है. So check for first cube of any odd number is even. उसने पूछा है
कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर, किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो वो एक गिवन नंबर होता है। तो चेक कर लेते हैं, क्यूब करिए 1 का, क्या मिलेगा 1, ठीक है, ऑड नंबर है। नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3, तो 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, सो नो, ठीक है। क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने ये स्टडी भी किया है कि जो ऑड नंबर्स के क्यूब होते हैं वो हमेशा ऑड नंबर ही होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नाउ चेक फॉर नेक्स्ट, इट इज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। वो बोल रहे हैं जो परफेक्ट क्यूब है वो 2 zeros के साथ में एंड नहीं होता है। यस, इट इज ट्रू। फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या कहा है उसने, परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। सो क्यूब ऑफ 10 कितना होएगा 1000, ऐसे ही क्यूब ऑफ 20 क्या हो जाएगा 2 2 4 2 8 एंड 3 times 0। सो इट इज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Now check for next, if the square of a number ends with 5 then its cube ends with 25। तो ये हमें बताना है कि जो इसका एंड है वो 25 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो स्क्वायर पहले चेक कर लेते हैं। स्क्वायर चेक करने के लिए चेक करिए, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है 25 पर ये एंड हो रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं नेक्स्ट, what is the square of 15? It is 225. And what is the cube of 15? It is 3375. Okay, 3375. ठीक है, but it's not ending with 25. That's why this statement will be false. There is no perfect cube which ends with 8. ये बोल रहा है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से 8 पर एंड होता है। तो चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं इसके लिए, जो क्यूब ऑफ 12 है कितना होता है 1728, ठीक है, एंड हो गया 2 पर 8 पर। एंड वन मोर वी कैन चेक 22, क्यूब ऑफ 22 कितना होता है 10648, ठीक है, जो कि 8 पर ही हमारा एंड हो रहा है। इट मीन्स this statement is false statement, ठीक है, false statement। Now the cube of a 2-digit number may be a 3-digit number। बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी 2-digit नंबर का क्यूब करते हैं तो ये एक 3-digit नंबर हो सकता है, ठीक है, 3-digit नंबर हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं किसी भी 2-digit नंबर का क्यूब करके। तो देखो यहां से ही चेक कर सकते हैं, हमने 2-digit नंबर क्या है हमारे पास 12 का क्यूब है और वो बोल रहे कि 3-digit नंबर। तो चेक करिए यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। नाउ द क्यूब ऑफ अ 2-digit नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। कि कोई भी एक 2-digit नंबर अगर हम लेते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 7 या फिर उससे भी ज्यादा डिजिट्स हो सकते हैं। तो ये काम करते हैं, सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं 2 डिजिट्स में, क्या होते हैं 999 99। तो 99 का जो क्यूब होता है इट इज 970299, ठीक है। चेक करिए हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर 6 डिजिट, ठीक है, वी हैव 6 डिजिट्स है। और ये क्या बोल रहे हैं कि ऐसा 2-digit नंबर जिसका हम क्यूब करें तो उसमें हमें 7 या 7 से ज्यादा डिजिट्स मिले, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। बोल रहे हैं कि अगर किसी हम सिंगल डिजिट का क्यूब करते हैं तो वो एक सिंगल डिजिट होती है, ठीक है। तो 1 का क्यूब किया तो 1 मिला, 2 का क्यूब किया तो कितना मिला 8 मिला, ठीक है। तो यस इट मे बी ट्रू। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नाउ चेक फॉर क्वेश्चन नंबर 3। Now check for question number 3. It is given to us. You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube roots of 4930 and 1 to 167 3 to 768. ठीक है, इन सबके हमें विदाउट फैक्टराइजेशन, विदाउट डूइंग प्राइम फैक्टर्स, वी नीड टू टेल देयर क्यूब रूट्स, ठीक है। लेट्स चेक 1331. So what to do in this?
जस्ट मेक 2 ग्रुप्स। आप 2 ग्रुप्स इसमें क्रिएट करिएगा। जो फर्स्ट राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो पहला ग्रुप बन जाएगा, और जो इधर इसके नेक्स्ट में पड़ेगा वो सेकेंड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, सो आप चेक करिए कि जो 331 है, ठीक है, क्यूब ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट, जो यूनिट प्लेस पर डिजिट है उसका क्यूब कितना होगा। इसमें यूनिट प्लेस पर डिजिट क्या है 1, सो 1 का क्यूब क्या आएगा 1। तो इस नंबर में जो पहली डिजिट होगी, जो इसका क्यूब रूट हम फाइंड करने जा रहे हैं, उसकी जो पहली डिजिट होगी वो क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी। ठीक है, अब टेंस प्लेस की बात करते हैं। ठीक है, टेंस प्लेस में क्या होगा, इससे यहां पर क्या डिजिट है टेंस प्लेस में, जो सेकेंड ग्रुप था 1 था। ठीक है, तो अब 1 किस किस के बीच में आता है, किस किस के क्यूब रूट के बीच में आता है। ठीक है, चेक करिए, 1 का क्यूब क्या होता है 1 और 2 का क्यूब 2। चेक करते हैं, 1 का क्यूब 1 होगा और 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो जो 1 आ रहा है 1 और 8 के बीच में आ रहा है, मीन्स 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। तो छोटा कौन सा है, स्मॉल कौन सा है इसमें, 1 इज स्मॉल, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर 1। सो एक क्यूब रूट ऑफ 1331 विल बी 11। Okay, this is the way to find cube root without factorization. Now let's check for next. It is 4913. Now again make a group of 3 digits from right hand side and rest of digits आप एक तरफ रख देंगे। So check 913. In 913 cube of unit place digit. Cube of unit place डिजिट। ठीक है, चेक करिए इसमें क्या है यूनिट प्लेस डिजिट, इट इज 3। तो क्यूब ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या आएगा 3 3 9 3 27, और 27 में भी जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है 7 है। तो इसका क्यूब रूट जब हम फाइंड कर रहे हैं तो उसके जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगी वो क्या आएगी 7 आ जाएगी। नाउ यहाँ क्या है 4। अब 4 के लिए हमने चेक करना है कि ये किस किस के क्यूब रूट के बीच में पड़ता है। तो एक तो हो जाएगा क्या 1 का क्यूब कितना आएगा 1 एंड 4 और क्या रहेगा 2 का क्यूब, अगेन 2 2 जा 4 2 जा 8। तो फिर से क्या रहेगा, ये इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है 1 है। ठीक है, 1 स्मॉलेस्ट नंबर हमने यहाँ लिख लेना है। तो ये किसका क्यूब होगा 17 का। नाउ चेक फॉर 12167। Again dividing 2 groups. So in 167 cube of unit place digit, ठीक है, यूनिट प्लेस डिजिट का हमने क्यूब फाइंड करना है। तो यूनिट प्लेस पर क्या है 7, क्यूब ऑफ 7 वी हैव इट इज 343 एंड 343 में जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या है 3। ठीक है, तो ये इसका यूनिट प्लेस डिजिट बन जाएगा। नाउ रेस्ट इज 12 है एंड 12 को चेक करना है कि किस किस के क्यूब के बीच में आता है। सो अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 जा 9 3 जा 27 ज्यादा हो जाएगा, एंड 2 का करते हैं तो 2 2 जा 4 2 जा 8। तो 2 का क्यूब और इधर ये 3 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 एंड 3 का क्यूब होता है 3 3 जा 9 3 जा 27। तो जो 12 है वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है, लेकिन इन दोनों में से भी जो छोटा है वो कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है 2। तो जो स्मॉलेस्ट है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो क्यूब रूट ऑफ 12167 विल बी 23। ठीक है, इन दिस मैनर वी कैन चेक 32768 32768। Again make 3 groups and rest of digits put together. So in 768 cube of unit place digit, यूनिट प्लेस डिजिट हम चेक करेंगे इसमें कि उसका क्यूब क्या होगा। सो यूनिट प्लेस डिजिट क्या है इसमें 8। सो 8 का क्यूब कितना होता है, इट इज 512। ठीक है, अब 512 में भी यूनिट प्लेस डिजिट इट इज 2, दैट्स व्हाई इन इट्स क्यूब रूट फर्स्ट डिजिट जो 1 प्लेस डिजिट है वो क्या आ जाएगी
2 आ जाएगी। नाउ चेक फॉर टेंस प्लेस डिजिट। सो रिमेनिंग नंबर इज 32। 32 को हमने चेक करना है कि किस किस के क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। तो चेक करिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड 4 का क्यूब क्या कितना होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64। सो 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब कितना होता है, ये 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड ये होता है 64। तो जो 32 पढ़ रहा है वो किस किस के क्यूब के बीच में पढ़ रहा है, 3 के क्यूब के और 4 के क्यूब के बीच में ये 32 आ रहा है। अब इन दोनों में से भी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 3। सो ऑन टेंस प्लेस वी विल राइट 3। सो 32 7 6 8, इसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा, 32। सो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का क्यूब रूट विदाउट फैक्टराइजेशन।